other areas also, suburban areas like, you know, mm, but the more important, he has emphasized that his spiritual and the proper ecosystem vibes goes into our minds, and that is what is happening. And you might see most of us, I think everyone sitting here is drawing inspiration from him one or the other way. And today we got this opportunity, since we are celebrating the Pride of Real Estate Award 2025, the second edition, and he is here, so why not use this opportunity to interact with him and know what are the pros and cons of this construction industry as far as Nagpur and Vidarbha is concerned. So first, I would like our media to get settled. Meantime, we will use this time to interact with our corporate members. So, if you allow, sir. Yeah, please. Yes, our corporate members are there. संजय होतो सगळ्यांना बोलून घ्या. आपले जेवढे वेळ खाली सगळ्यांना सांगितलं, इन्स्ट्रक्शन दिलेलं आहे. तुम्ही Mrs. Smita Patil, who is also joining us from Pune, and Dr. Kunal Padoe, who is our president, and I am your chairman, Naradko Vidarbha, Ghanshyam Dokne. Now, I would request the corporate members, if you have any queries or something to discuss with Honorable Dr. Hiranandani sir, so you can ask. Sir, I would like to start from you. सर, I request राजन सर. नागपुर आना चाहिए. सभी की यही इच्छा है सर. नागपुर का. हेलो लाइव. बस नागपुर को सुंदर बनाने के लिए आपने आना चाहिए, क्योंकि हम ये लोग हैं जो नागपुर को, या हमारी फैकल्टी ऐसी है कि जो नागपुर को सुंदर बना सकती हैं. तो आप लोग जो है, आप हम लोगों ने सब चीज़ बॉम्बे में टाइकून है आप लोग, तो अब नागपुर में भी आप आ जाए तो हम लोगों को बहुत एक्साइटिंग रहेंगे कि भाई आप लोग आ जाए यहाँ पे. थैंक यू. I have a little question related to construction and in general. Industry, especially infra, is a very CO2 emitting industry, and PropTech till now has not come to a matured stage where it can be directly utilized or directly brought into action. So what do you think will be the future in terms of PropTech, in terms of sustainability, A, financial wise, economic wise, and B, usability for faster processes? Because currently if you take a slab, it takes 21-25 days, and the amount of time to get a skyscraper up is quite large compared to what we see in other first world countries, example US, China, whatever it is. Thank you very much for the question. It's very interesting. See, we have to first understand, and this is for the press also, so I'm addressing both of you. First of all, we have to understand, look at the GDP growth of India. The GDP growth of India has now reached 7.8%. We are the fastest growing nation in the world. So we are doing that, which means what? The wealth of the nation is really growing up. We are already reached number 4, and by 2030 we hope to reach number 3, and then we compete with 1 and 2. Now the whole issue is what? That ultimately we need to get to see that roti, kapda, makan. Roti and kapda we have been able to achieve. So the poorest of poor will be able to buy a dhoti or buy a sari or buy some cloth to be able to cover to themselves at an affordable price. The challenge still is in the makan part of it, where we have still not got housing for all. During Vajpayee ji's time, we did the first national housing policy of India, which is to cover and see that we get housing for all. That's the slogan which Mr. Narendra Modi has carried on through. Now, what is the challenges? The challenges are threefold. The first challenge is infrastructure. Do we get connectivity? Do we get the road? Do we get the water? Do we get the electricity? Do we get
all these facilities to the place where you can build affordable housing. Nagpur is lucky because you have Mr. Devendra Fadnavis and Mr. Gadkari, that most of the infrastructure in new areas has come in advance of development. Probably this is the only city in India where the size and scale of infrastructure comes ahead of development. There is no other city to the extent to which Nagpur is there today. A triple-decker flyover and development, nobody has dared to think of, and it is here. And the connectivity to other places also is improving. What is the second point? First, I'm talking the macro level. Last year, 24-25, real estate grew at 10%. At that time, India was growing at 6.5% last year. At that time, real estate and infra grew at 10%. According to CRISIL, which is the international standard and Poor, this year the growth of GDP, the growth of real estate is going to be between 12 and 15%. This is a predicted growth. My view is it will be minimum 15%, but this I'm telling you is a outside person talking about India and the growth potential that is there. So the focus is definitely on the housing side and infra. Let me give you a third comparison. Let's look at China. The double-digit GDP of China grew in those years when they focused on housing and infrastructure. So what happened? That is why the prosperity of China took place, and that is why they were able to leapfrog. There's one more story. The story is like this. The employment in India. The largest employment in India is agriculture. The second largest employer is housing and infrastructure. So any growth in housing and infrastructure, we will be able to cater to employment also, because you can't have wealth of the country and not have employment. That is a very dangerous thing for any country to have. So we want both. We want wealth of the nation, and we also want people at the lowest level to be able to get employment. Where is the real gap in the macro picture? The real gap in the macro picture is in employment is that we are 2 million workers short today of skilled workers. 20 लाख वर्कर आज के तारीख में रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन में हम शॉर्ट हैं. और कौन सी टाइप के? सुथार, बारबेंडर, प्लम्बर, पेंटर, वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, प्लास्टर, पीओपी वर्कर, और ये सब में शॉर्टेज है. कितने? 20 लाख वर्कर आज शॉर्ट है. Just to give you a confirmation, Larsen and Toubro CEO, 2 or 3 months आप इंटरनेट में जाके देख सकेंगे. CEO of L&T said, we are 25,000 workers short, skilled construction workers short, in one company called L&T in the construction industry, only one company. And they have 17 skilling centers. In spite of that, they are 25,000 construction workers short. So if India wants growth which is rapid, even double-digit GDP growth, they have to focus still more on housing and still more on infrastructure. These two things have to be focused on. You are sitting in the city of Nagpur, where we have the chief minister from here, and you have the most dynamic central minister, Mr. Gadkari Sahib. He makes only 35 kilometers of national highway per day. He's the only minister I know who says we are not money short. कोई भी मिनिस्टर हमारे देश में कभी नहीं कहा है. प्राइम मिनिस्टर के बाद एक ही आदमी है, वो है नितिन गडकरी साहब. तो इसलिए आप नसीबदार हैं कि आपके यहाँ के जो केंद्र सरकार में हैं, लेकिन वो यहाँ के हैं, इसलिए आपको कोई चिंता नहीं करनी पड़ रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर करने. बट आई वाज टॉकिंग ऑन अ मैक्रो पिक्चर.
So when you talked about rapidity of construction, whether it is those issues, now I'm specifically answering your question, is that we have to have technology, we have to have rapidity of construction, and we have to do new technologies in order to make it fast. Let's take the case of Mumbai. I know more about Mumbai, so I'm telling you the figures, but I'm sure you have good statistics for Nagpur and other places in Maharashtra and rest of India. Today, Mumbai is considered the richest city in India. But do you know that 50% of my population lives in jhopatpattis and jhuggi jhopadis? The best part is, Mr. Devendra Fadnavis does not look at this as a negative. He says this is an opportunity. जो बेकार के हैं और झोपड़पट्टी में हैं, मैं उनको घर दिला सकूंगा. This is a positive angle of a negative thought which everybody says, अरे यार मुंबई में तुम्हारे झुपड़े, हम प्लेन से उतरते हैं तो मुझे झुग्गी झोपड़े देखते हैं. साहब क्या बोलते हैं? अरे वाह, हम झुग्गी झोपड़ी है तो मुझे एक चांस मिलेगा कि झुग्गी झोपड़ी के लोगों को, सबको जो बेघर है और जो झोपड़ी में रहते हैं उनको मैं घर दिला दूँ. तो हमारी एक ही एडवांटेज भारत को है, देश को है, कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब या देवेंद्र फडणवीस या गडकरी साहब जैसे जो है मंत्री लोग, वो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पॉजिटिव एंगल से देख रहे हैं. एंड आवर फ्यूचर इन ऑर्डर टू गेट द ग्रोथ ऑफ इंडिया इज देयर. ऑफ कोर्स देयर आर अदर क्वेश्चंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बट मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट गोइंग टू टेक केयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट. आई विल गिव यू वन स्टोरी. 35 years ago there were 2 cars which were manufactured. आपको पता नहीं होगा, ये सब बाकी को होगा. फिएट गाड़ी और ये होते थे. एक साल में 10,000 गाड़ी फिएट की बनती थी, 10-12 हज़ार एम्बेसडर की बनती थी. और वो फैक्ट्री में 10,000 गाड़ी एक साल में बनाने के लिए 5-5.5 हज़ार वर्कर्स होते थे. 10,000 साल में गाड़ी बनाने के लिए 5-5.5 हज़ार वर्कर्स काम करते थे. आज मारुति 1.4 मिलियन कार्स बनाते हैं ना, तो उनके पास 5,000 वर्कर्स नहीं हैं. क्यों? ऑटोमेशन हुआ है, रोबोटिक्स हो गया है, ऑल द अदर स्किल्स आर देयर. So though India does need manufacturing, and I am all for it, and we have to do manufacturing to compete with the rest of the world, if you want to solve my problem of wealth creation along with employment, then you have to do more of housing and this thing. So that technology of fast construction, sustainability, fortunately our Prime Minister has focused on sustainability. But you have to understand, America doesn't need more roads. They don't need more airports. They don't need more construction as much as we need, because our population of 140 crores, which we have to give them housing. So we will have to have carbon emission. But we have to understand that the Prime Minister has said that sustainability is his target. And he has gone ahead. That's why you hear about energy sustainability. He's talking about solar. He's talking about hydrogen. He's talking about each one of these that are going to take place. So your second part of your question, which was sustainability, the target is definitely there to our Prime Minister. So yes, we need mechanization. We need faster work to be done. Sustainably is to be done. The only factor we are not worried about today, for the first time in the history of India, and in my lifetime of 40 plus years, is nobody is talking about shortage of money. हमारे देश में इन्वेस्टर्स काफ़ी आ रहे हैं, हमारे देश के इन्वेस्टर्स. FII में से सब लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेके गए, लेकिन हमारे देशवासी हमारे स्टॉक मार्केट पे पैसे डाल के उसको सस्टेन कर दिए. नहीं तो ख़त्म हो जाता, क्योंकि इतने पैसे खींच लिए लास्ट एक साल में कि वो गजब के पैसे थे. लेकिन in spite of everything, we sustain. So our sustainability of internal demand is very high, one. And second, we will achieve what we call Atmanirbhar Bharat now, because we are thankful to Trump. पहले हम आत्मनिर्भर भारत सही नहीं होते थे, क्योंकि वो चैलेंज नहीं होता था, हम अमेरिका के भरोसे पर काम भी कर सकते थे. अभी हम सही तरीके से आत्मनिर्भर बनेंगे, डिफेंस में भी बनेंगे. हाँ, I don't know whether you are aware,
India is the largest purchaser of airplanes in the world. Air India, Indigo, and I think 1-2 other smaller airlines have purchased more than 1,500 new aircraft from Boeing and Airbus. This is the highest purchase in the world that has taken place. We are going to, in the last 5 years and next 3 years, we will double the number of airports that we have. Our in Mumbai, we are just going to launch the second airport next month or this month. We are waiting for Prime Minister's date. And we are already planning a third airport in Mumbai before the second airport is even launched. We have already got 2 ports in Mumbai. We have the Mumbai Port Trust, we have the JNPT Port Trust. We are already planning a third port in Mumbai in the sea by reclamation. So what is it that the country is doing is we are all have the benefit of a macro growth, a vision of our leaders which is very positive, and we have to take advantage of that and actually give back to society and give them this. The challenge is, in the case of housing, challenge is affordable land. We are challenged with the high rates of land and unaffordability of land, but we are doing it by increasing the FAR, producing more construction area rather than using more land for the purposes of development. And of course, like you have done in the case of Nagpur very well, creating outer ring road, second ring road that is there, so more land will be available. But India cannot afford to go to horizontal growth. India will have to grow. Urban India will be vertical growth. There is no question about the luxury of horizontal growth is not there for India because of its high population. So in the long run, vertical growth will be the way to do, and your question is correct that we need to do it. As far as the Hiranandanis are concerned, we are looking at things in Nagpur. Let's see. We have a lot of projects already in Maharashtra. We'll start 6 new projects in the Mumbai region in the next 6 months. So we have a lot on our cake, but let's see. We'll study 1 or 2 and hopefully something comes up where we will take up Nagpur too. But थोड़ा सा लाउडर. नहीं, आपकी बात अच्छी प्रश्न है. वो ये प्रश्न प्रधानमंत्री जी को भी पूछा गया. उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि 100 अर्बन सिटीज़ के ऊपर वो फोकस करेंगे. वहाँ उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी की इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर की इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड की इंफ्रास्ट्रक्चर, मेट्रो की इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 100 शहरों में देंगे. ये टियर 1, टियर 2 और टियर 3 सिटीज़. ये पॉइंट 1 है. सेकेंड, मैन्युफैक्चरिंग एरियाज़ को खोल रहे हैं. तो सिटीज़ के अलावा ये टियर 1, टियर 2 और टियर 3 के अलावा जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, आपका यहाँ से नागपुर मुंबई कॉरिडोर है, वहाँ हम सेंटर्स बना रहे हैं. वो एक सेंटर्स की डेवलपमेंट अलग होगी और जितने भी शहर वो रास्ते में हैं, जैसे नासिक है, अलग है, वहाँ भी बढ़ोतरी काफ़ी होगी बिकॉज वो होगी. तीसरा, प्राइम मिनिस्टर फोकस कर रहे हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशंस. तो आप देखेंगे या रिलीजियस डेस्टिनेशन है या गोवा जैसे डेस्टिनेशन है, जैसे हमारे महाराष्ट्र में अभी अलीबाग और सिंधुदुर्ग का डेस्टिनेशन ज़्यादा खोल रहे हैं. दिस थिंग हिल स्टेशन पर प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि बारिश ज़्यादा होने से जो अभी डेवलपमेंट हुआ है वो सही नहीं है, तो वहाँ परिवर्तन वो करना चाहते हैं. कश्मीर का डेवलपमेंट करना चाहते हैं. सो दैट इज़ टूरिस्ट डेवलपमेंट. और चौथी बात है वो कर रहे हैं एक सेंटर्स, जितने भी एयरपोर्ट्स हमारे देश में आ रहे हैं उसके आसपास में ये करना चाहते हैं. और चौथी बात है मल्टी मोडल कॉरिडोर बना रहे हैं. जैसे हमारे एयरपोर्ट्स के कॉरिडोर हैं, रेलवेज़ के कॉरिडोर हैं, नेशनल हाईवेज़ के कॉरिडोर्स हैं और सी पोर्ट्स और रिवरवेज़ के कॉरिडोर्स हैं. वो सब की एक साथ में मिलावट जो करके हो रही है वो एक डेस्टिनेशन बन रही है. तो आप तो सिर्फ टियर 1, टियर 2, 3C की बात करें, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि ये सिर्फ नहीं होगा. मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशंस होगा,
जो आईटी और वगैरह के जो होंगे। हाँ, दूसरा अभी वो उन्होंने बात की रिसेंटली, एजुकेशन सेंटर्स खोल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस साहब ने बोले हैं कि नागपुर में कर रहे हैं, और मुंबई के जो थर्ड मुंबई 3.0 जो कर रहे हैं अटल ब्रिज के बाद, वहाँ भी वो एजुकेशनल सेंटर करना चाहते हैं। तो ये वो सोच रहे हैं कि जो लोग अभी अमेरिका जा रहे हैं एजुकेशन के लिए, वो एजुकेशन यहाँ 25% कॉस्ट के अंदर वही इंस्टीट्यूशंस महाराष्ट्र में आके एजुकेशन आपको दे सकते हैं। तो ये एक परिवर्तन वो लाना चाहते हैं। सो आज की तारीख में टियर 1, टियर 2, टियर 3 से बहुत हम आगे चल चुके हैं, और हम अभी भी वो टियर 1, टियर 2, टियर 3 बात कर रहे हैं। तो ये टियर 2, टियर 1, 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 20 की बात चल रही है। तो ये आप देखेंगे अभी जैसे कुंभ मेला रहा अभी, या राम मंदिर की उद्घाटन हुई, तो वहाँ 40 होटल खुल रहे हैं, 1, 2, 3, 4 नहीं, 40 होटल खुल रहे हैं। अलीबाग के पोर्शन में आप देखेंगे अभी 1 होटल है, और दूसरे 5 साल में 20-25 होटल खुलने वाले हैं। तो हर सेंटर में ये हॉस्पिटैलिटी और टूरिज़्म के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। और आज के तारीख में आप कंपटीशन देखेंगे तो पूरे हिंदुस्तान में जितने टूरिस्ट आते हैं ना, वो एक दुबई में जाते हैं, एक दुबई में पूरे देश में। तो हमारा स्कोप कितना ज़्यादा है। जैन टूरिज़्म है, बुद्धिस्ट टूरिज़्म है, हमारे मंदिर हैं, दूसरे हैं, मुस्लिम के कितने दरगाह हैं, सब कुछ अपना सब है। तो वो भी एक डेस्टिनेशन रूट है, तो उसके ऊपर ध्यान देते हुए वो मल्टीप्लायर इफेक्ट वो करना चाहते हैं। आप देखेंगे तो जो हम हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, टूरिज़्म इज़ द नेक्स्ट मल्टीप्लायर इफेक्ट, क्योंकि वहाँ भी जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट होता है, और रियल इस्टेट में एम्प्लॉयमेंट की दूसरी एक डायमेंशन है। वो डायमेंशन क्या है कि जो मटेरियल हम खरीदते हैं, जैसे स्टील है, सीमेंट है, पेंट्स है, मार्बल है, इलेक्ट्रिकल है, लाइट्स है, बल्ब है, लकड़े हैं, इक्विपमेंट है, तो 260 इंडस्ट्रीज़ की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है। तो हम जितना भी रियल इस्टेट में हम कंस्ट्रक्शन करते हैं, और फर्नीचर का डिमांड आता है, आज एयर कंडीशनिंग की डिमांड है, लिफ्ट्स की डिमांड है। मैं एक लिफ्ट का एसोसिएशन के कॉन्फ्रेंस में गया था, तो मैंने उनको बताया, 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कोविड के बाद की बात कर रहा हूँ, मैंने कॉन्फ्रेंस पे गई थी, मैंने उनको कहा था कि आपका नेक्स्ट ईयर में 30% बिजनेस बढ़ेगा। और कितना बड़ा पता है? 100%। और 3 साल में हर साल 50% से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप टावर्स बना रहे हैं, हर शहर में टावर्स बन रहे हैं। हमारे मुंबई में झोपड़पट्टी की रीडेवलपमेंट के 30 माले की बिल्डिंग बन रही है। झोपड़पट्टी के रीडेवलपमेंट के जो री हाउस हो रहे हैं, जो ग्राउंड फ्लोर पर अब रहते हैं, अभी वो 30 माले में भी रहना शुरुआत कर दी। तो इसलिए जो चेंजेस आए हैं वो सिर्फ वो अभी भी हमारे दिमाग में वो टियर 1, टियर 2, टियर 3 है। अभी उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट इतना ज़्यादा आ गया है, और जितने भी नेशनल हाईवेज बनते हैं उसके हर एक एरियाज़ में वो ऑफ सेंटर में एक क्या बोलते हैं उसको, नोड्स बोलते हैं, शायद कोई स्टेट्स में नोड बोलते हैं, कुछ और नाम भी है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो नोड्स पर भी करना चाहते हैं, कैसे कि भाई वहाँ डेवलपमेंट कुछ हो जाए और काफ़ी कर सकते हैं। काय जर पत्रकार बंधूंना प्रश्न असतील तर प्लीज त्यांनी विचारा. थोडासा इनकन्व्हिनियन्स आहे, तुम्ही मागे बसलाय, पण थोडंसं लाऊडर नाही तो खुर्ची घेऊन पुढे घेऊन पुढे येऊन जा. काय सर ज्यांना पण इंटरेस्ट आहे पुढे या. आपले थोडंसं नाही खुर्ची, पत्रकार बंधूंना no you can speak, but whoever wants sitting at the back, if you want to come in front, please come in front. सर कि आजकल जो इंडियंस जो मिलीनियर्स है उनका दुबई में इन्वेस्टमेंट का काफ़ी रुचि बढ़ रही है। हर हफ्ते यहाँ कोई ना कोई कंपनी आती है, किसी ना किसी स्टार होटल में वो प्रेजेंटेशन देती है और वो सिटीजनशिप भी देते हैं। तो क्या आपका इसके ऊपर क्या राय है? हमारे पास जिस देश में पैसे ज़्यादा बनते हैं ना, तो वो पूरे विश्व में जाते हैं। दुबई ने एक चमत्कार कर दी कि लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। वो सिटीजनशिप नहीं देते, वीज़ा देते हैं। अभी तक कोई हिंदुस्तानी को शायद 1 साल के अंदर 12 लोगों को सिटीजनशिप दी है। बाकी सबको गोल्डन वीज़ा 10 साल 20 साल का देते हैं। आप घर ले लेंगे तो आपको गोल्डन वीज़ा मिल जाता है।
तो उनकी डेवलपमेंट जो दुबई रही है ना, वो एक नया चमत्कार है. चमत्कार क्यों है? अबू धाबी और दुबई दो शेकडम है. अबू धाबी की आमदनी वेल्थ इज 1 लाख टाइम्स दुबई. कितना? 1 लाख गुना ज्यादा. तो जितनी भी वेल्थ अबू दुबई की है उससे 1 लाख टाइम्स गुना ज्यादा अबू धाबी की है. लेकिन आप दुबई की बात करेंगे. क्यों? क्योंकि उन्होंने एक इंटरनेशनल प्लेस क्रिएट किया. उनकी लोकल पॉपुलेशन 5% है. जो एमिरेटीज हैं दुबई में रहते हैं वो टोटल पॉपुलेशन, बाकी हिंदुस्तानी हैं, पाकिस्तानी हैं, रशियंस हैं, चाइनीज़ हैं, अफ्रीकन्स हैं. और अभी रिसेंटली एलन मित्तल साहब जो विश्व में सबसे बड़े स्टील मेकर हैं वो लंदन से शिफ्ट होके दुबई हो गए. सो एक उन्होंने एक माहौल बनाया है जहाँ लोगों को ईजिली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं. लेकिन इस साल में 25,000 लोग गए. मुझे वो 25,000 में प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है. मुझे दिख रहा है कि जो 140 करोड़ हमारे पास है ना, हम चाहिए तो 1 करोड़ भी हम बेच सकते हैं, कोई हिंदुस्तान को फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन वो सब जो वहाँ भी है ना, वो पैसे वापस यहाँ भेजते हैं. टुडे द हाईएस्ट इनकम ऑफ इंडिया इज NRI रेमिटेंस टू इंडिया. इट इज मोर देन $50 बिलियन. कौन? हमारे MRI. तो MRI वहाँ जाए तो हमें चिंता नहीं है, उनको पैसे यहाँ भेजते रहे वही अच्छी बात है. तो वहाँ कमा के फिर यहीं आते हैं, तो वो घर वहाँ लेते हैं, कमाते हैं और वापस भेजते भी हैं. केरलाइट, पूरे केरला की इकोनॉमी NRI के ऊपर चलती है पूरी. उनकी जो पैसे आ रहे हैं ना, उनके पूरे परिवार, पूरे स्टेट, पूरे इन्वेस्टमेंट सब केरलाइट जो बाहर काम करते हैं, मिडिल ईस्ट काम करते हैं उसमें. तो ये 25,000 कोई 25,000 लोग के लिए आप चिंता मत करिए. हमारे 140 करोड़ की चिंता करेंगे और उनकी बढ़ोतरी हो गई ना तो 25,000 हम नहीं 50,000 नेक्स्ट ईयर भेज देंगे लोगों को. 100% it will boost real estate. It is positive effect of real estate. You have to understand that we are not getting input tax credit. In real estate is one of the few industries where there is no input tax credit. So any benefit which has been brought by GST, whether it is on steel, it is on cement, it is on tiles, it is on bricks, it is on other materials, all that is a positive effect on real estate. It is more positive effect on affordable housing, which is my blessing. Because when you take total cost of the cost of construction in other places is not a tension because land cost itself and that cost is very high. But in the case of affordable housing, GST thing will make a world of a difference. So that is the biggest thing which has happened. We are blessed by the Prime Minister and the Finance Minister for having made this. It has boosted and will benefit real estate, but it will benefit affordable housing, real estate much more than the regular housing. Because you have land component and then you have the construction component and then you have the profit component. If your land component is too high, then GST benefit is less because GST component is smaller cost. But in the case of affordable, the land cost is low, the material and labor cost is high, hence any benefit which is coming for the purposes of GST will benefit. And especially because we don't have input tax credit, there is no other benefit which is coming to this. So we are direct beneficiaries as far as affordable housing is concerned, not in the case of high income housing. अगर निरंजन सर अगर मुंबई से बाहर निकल के कहीं और प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, किन पैरामीटर्स को वो कंसीडरेशन में रख के उसके बाद ही किसी प्रोजेक्ट को सिलेक्शन करते हैं? और दूसरी बात है कि कोई भी धंधा हो ना, रियल एस्टेट हो, हीरानंदानी हो, कोई भी हो, डिमांड अपॉर्चुनिटी देखते हैं. जहाँ डिमांड होता है वहाँ अट्रैक्ट होते हैं. नागपुर में अभी गोदरेज कंपनी आ गई, दूसरी कंपनीज भी सोच विचार करते हैं. बॉम्बे बहुत ही अट्रैक्टिव हो गए. हमारे पास 25 बड़े डेवलपर्स बेंगलोर से मुंबई आ गए. अभी ऑब्वियसली
कहाँ उनको कुछ खुशबू दिखी होगी या कोई मद दिखा होगा, तो इसलिए वो लोग आते हैं। तो हर एक चीज़ में, जैसे अभी दुबई की बात जिक्र की, तो कोई भी चीज़ में कोई अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन वहाँ होता है और अपॉर्चुनिटी दिखती है कि डिमांड एंड सप्लाई का क्या कॉन्स्ट्रेंट है और डिमांड कितना होगा, उसके ऊपर ज़्यादा लोग आएंगे। हम सेकेंड, रियल एस्टेट इज़ अपॉर्चुनिस्टिक. The opportunity of what is available, how that is easily available, and what is the demand situation in that area. अभी जैसे पहले जब मिहान स्टार्ट हुआ था, ये एक अपेक्षा थी कि 5 साल के अंदर गोल्ड माइन बन जाएगा. बहुत समय लग गया, बहुत ही स्लो रहा, तो उसकी डिमांड पोटेंशियल नहीं बनी, इसलिए ज़्यादा लोग नहीं आए. जहाँ डिमांड पोटेंशियल ऑटोमेटिकली बढ़ती है तो वहाँ लोग आएंगे, क्योंकि मनी फॉलोज दोज एरियाज विच इज देयर. बट अपॉर्चुनिटी विल ऑलवेज बी देयर एंड नागपुर इज अ लीडर ऑफ दैट अपॉर्चुनिटी. बट वी हैव टू सी डिमांड एंड सप्लाई अलॉन्ग विद द फैक्ट ऑफ that you have the opportunity in Nagpur. But Nagpur is definitely an attractive place. We will certainly look at Nagpur also, but many others will also look at Nagpur now, because we see that the demand is also now coming up again. So we have supported, we are the state which has, we have done the highest resolution of problems, but we have the largest number of projects in India. So obviously the number of cases in Maharashtra is the highest, but the disposal is also highest. We have one thing which is there, which NAREDCO has done with MahaRERA, is that we have conciliation cells. And we have, in the first stage of conciliation, we were able to 60% of the cases on conciliations were sorted out. Means they didn't have to spend on lawyers, they didn't have to go in appeal, they did not go anywhere, they settled in the bench of conciliation. Just now that numbers have fallen from 65% to 35%, but even now 35% of all the cases which go to conciliation get sorted out, so they don't have to go for long-term litigation, which has only happened in Maharashtra. No other state has conciliation which is there as good as MahaRERA has done in Maharashtra. Second, our disposal is high, but the number of cases are high because the number of projects in Maharashtra is the highest in India. So that's a positive. No, we don't have a grievance cell. We are supportive cells. So what we do is help the people for the purposes of that. But we don't have a grievance cell because people only will go to MahaRERA for the purposes of their grievance, because you have to pay 5,000 now. 1,000 or 5,000? 5,000 rupees. So that's the cheapest way you can possibly do, which is there. And I think MahaRERA is quite effective, at least in the whole of Maharashtra. It's a forward-looking thing. Of course, no. नहीं. See, we don't have a judicial authority. We want to create what we call an arbitration cell within NAREDCO to sort out problems between the buyer and the seller. And we want to do it between developer and developer also. In many cases, we see disputes between developer and developer. So in many places, like the cotton market and certain markets in India, Maharashtra, they have conciliation cells within or arbitration cells within the thing. So we are considering whether we can create arbitration where there are disputes between developers and developers in the case of property, because litigation in courts now take 5 years, 10 years, 20 years. They don't get over at all. So we're hoping that we can set up arbitration centers for that purpose. जिस हमारे देश की प्रगति देखते हुए हमारे दिमाग में एक ही बात है, रोटी कपड़ा. We'll have to get some chairs. Somebody please. खुर्सी आना ना. पत्रकार बंधू ना, तुम्ही समोर या ऋषभ पुढे या ना. नाही खुर्सी पुढे घेऊन या ना. दुसरं काय पुढे घेऊन घ्या प्लीज. पत्रकार बंधूंना संधी बसायची.
त्यांना सरांशी इंटरॅक्शन करायचं आहे. जेवढे पत्रकार बंधूंना रिक्वेस्ट आहे प्लीज समोर It is our belief that in India, roti, kapda, makan is the primary need of the people. Only having growth of GDP is not sufficient. I think this need of housing needs to be done. Of course, Prime Minister is talking about health, he's talking about nutrition, he's talking about all the other aspects also. So, being a body which is relating to housing, our focus idea was that housing should be the need. And what better day than the Prime Minister's birthday to be the right to housing. So I've written a letter, you have got a copy of that, and I requested that the birthday should be the birthday for right to housing as far as India is concerned. So that that is something which we need to do. The housing day is not celebrated in the Western countries because there is no shortage of housing. उनको दिमाग में है ही नहीं कि हाउसिंग कभी शॉर्ट हो सकते. आप दुबई में जाएंगे या अमेरिका जाएंगे या उधर लंदन में जाएंगे तो आपको घर खरीदने को ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप किराए पर भी ले सकते हैं. और एक और भी बात हम करते हैं नरेटको के द्वारा कि हम अब तक हमारे देश में हाउसिंग ओनरशिप के ऊपर ही हम ध्यान दे रहे हैं. कोई भी देश में विश्व में सिर्फ ओनरशिप पर ध्यान नहीं होता है. हमें रेंटल हाउसिंग के ऊपर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है. और जितने भी हमारे कानून हैं या हमारे टैक्स ब्रेक्स है वो ओनरशिप हाउसिंग के ऊपर है. तो हम चाहते हैं कि किराए के मकान या रेंटल हाउसिंग के ऊपर भी एक पॉलिसी क्रिएट किया जाए कि वहाँ भी हमें कुछ राहत मिल सके जो किराए पर रहते हैं या किराए बना के किराए पर देते हैं. क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बात है. अमेरिका जैसे अमीर से अमीर देश गिना जाए तो 50% लोग अमेरिका में जन्म से मरण तक किराए के मकान में रहते हैं. तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हर एक को ओनरशिप मकान ही रहने की ज़रूरत है? ऐसी ज़रूरत नहीं है. हम चाहते हैं कि वो घर खरीदे. मैं भी चाहता हूं कि हर एक घर खरीद सकते हैं और वो सोशल सिक्योरिटी के हिसाब से और हमारे जो भी पॉलिसीज़ आईटी के हैं, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, वो आईटी वो नहीं, वो सहानुभूति दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, बेनिफिट देते हैं सेल मकान के ऊपर. तो हम एक बात है कि प्राइम मिनिस्टर का डे होना चाहिए हाउसिंग डे या राइट टू हाउसिंग डे. और दूसरी बात है अफोर्डेबल हाउसिंग में कुछ करना चाहिए. ये आर्बिट्रेशन क्लॉज हम करना चाहते हैं. और रेंटल हाउसिंग के ऊपर नरेटको का पूरा ध्यान है और हर बजट के टाइम पर हम ये सिफारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं कि इसके पॉलिसी पर कुछ परिवर्तन आ जाए. तो मैं समझता हूँ रेंटल हाउसिंग भी हर एक को खरीदना आसान हो जाएगा. और हमने 25 सुझाव दिए, लेकिन आइडिया क्या है कि पहले 5 साल को जितने भी नए अपन देंगे तो उनको टैक्स 50% टैक्स रिलीफ मिल जाएगा, उनको टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा. जो किराए के घर में रहते हैं उनको भी राहत मिल जाएगी कि उनको टैक्स डिडक्शन मिल जाएगा कुछ लिमिट के ऊपर. 25,000 30,000 रुपये हम किराए, सपोज आप किराए के घर में रहते हैं, 25,000 तक हो तो 5 साल आपको टैक्स डिडक्शन मिल जाए कि हम किराए का जो दे रहे हैं उसके ऊपर आपको राहत मिले. जैसे आपको टैक्स में डिडक्शन मिलते हैं, 20% मिलता है सैलरी में डिडक्शन, तो ये किराए में आप जो देते हैं उसको भी टैक्स रिलीफ एटलीस्ट 50% आपको देना चाहिए. तो आप 20,000 रुपये किराए देते हैं या 10,000 दे रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 5,000 रुपये में कोई राहत मिल जाए. तो ऑटोमेटिकली रेंटल हाउसिंग के ऊपर भी हम जो जोर देना चाहते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि ये भी एक माध्यम है खैर कि हम डेवलपर्स, इंस्टीट्यूशंस, ये वो सब हम करके कर सकें. हमारे यहाँ कितने लोग किराए से रहते हैं, कितना परसेंटेज किराए से रहने वाले? अभी हाँ, कोई बड़ा सेंसस नहीं किया हुआ है कि हमारा जो अंदाज बॉम्बे में है 50% लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, 20 वो बाकी के जो लोग हैं उसमें 25% मिनिमम किराए पर रहते हैं. पर वो आंकड़े हमने कभी सेंसस किए नहीं है, तो ये हमारा अंदाज है, लेकिन हम बोल नहीं सकते क्योंकि रजिस्टर्ड रेंटल जो है वो 25% है.
लेकिन रजिस्टर्ड के सिवाय अनरजिस्टर्ड काफ़ी चल रहा है। फर्स्ट टाइम बायर ज़्यादा है कि अपग्रेड करने वाले प्रॉपर्टी को अपग्रेड एनहांस लेने वाले ज़्यादा है? जैसे आप पहले अफोर्डेबल में रहते थे, फिर अभी लग्जरी अपार्टमेंट की तरफ जा रहे जो हमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो बता रहे हैं ना, वो हमको बता रहे हैं कि फर्स्ट टाइम बायर्स ज़्यादा हैं आज की तारीख में। जितने भी हमारी बातचीत हुई है, HDFC से हुई है, स्टेट बैंक से हुई है, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से हुई है, वो सब हमें बता रहे हैं कि फर्स्ट टाइम बायर्स ज़्यादा हैं और जो अपग्रेड करने वाले कम हैं। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोविड के समय पर अपग्रेड का डिमांड सबसे ज़्यादा रहा था। ये एक बहुत ही थी कि जो छोटी फैमिलीज होती थी, लेकिन बच्चे लोग वापस घर में लौट आते थे, कोई बाहर रहते थे लेकिन वो कहाँ भी काम नौकरी करते थे, वो घर में रहना ज़्यादा करते थे। कोई लोग काम करते थे VC के ऊपर, तो वो घर में रहते थे, और जिसके पास कमाई थी और अफोर्डेबिलिटी थी तो वो काफ़ी अपग्रेड हुआ। हमारे खुद के प्रोजेक्ट्स में आंकड़े ज़बरदस्त थी और हर एक का ये डिमांड काफ़ी रहा उसमें। लेकिन हम जो फिगर मैं दे रहा हूँ आंकड़ा, वो मेरा गेस्टिमेट है। वो हकीकत में कितना है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि कोई किसी ने भी ऐसे बना स्टडी डीप में किया नहीं है। जो आंकड़े रजिस्टर हुए हैं वो मैं बता रहा हूँ। Where do you see Nagpur real estate in next 5 years going? And what will be your advice to the... So last year's increase was 8% for Nagpur. 8 point something was there. 8.83. I think this year will be at least 10%. So, but whether it will be more than 10% or 10%, we don't know. But I'm just saying that at least a 20% increase of last year's is the apparent position which is taking place this year. So increase is definitely there. But how much will finally come about in terms of actual investment in each year is to be seen. But 10% is definitely there. What will be your advice to the coming up developers? Developers have 3 responsibilities. First responsibility is transparency, honesty and commitment. ट्रस्ट फैक्टर बहुत बड़ी बात है। हमारा रियल एस्टेट एक ही लाइन है जहां लोग आपको पैसे देते हैं और माल बाद में लेते हैं। तो एक हमारी जवाबदारी होती है कि हम हमारा पूरा करते हैं। कानून तो है, रेरा का कानून अभी है, तो इसलिए जो परचेसर है उनकी बात होती है। लेकिन जो लोग ट्रस्ट और फेथ को रखते हैं, जो डेवलपर्स हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं या ब्रांड है, उनको कंटिन्यूसली इंक्रीमेंटल ज़्यादा मिलता है फ्यूचर में। क्योंकि हमारे जो कस्टमर्स हो या कोई भी डेवलपर की बात करो, वो अच्छा काम करें, बिल्डिंग क्वालिटी बनाएं, स्वस्थ बनाएं, ये वो कस्टमर्स को बराबर सही तरीके से डील करें, तो फ्यूचर में वही कस्टमर आपको डिमांड देते हैं। तो हमारे आंकड़े, जो हमारे कंपनी की बात कर रहा हूँ, हम कोई भी नया लॉन्च करते हैं तो मिनिमम 22 to 24%, 22 to 24% नए प्रोजेक्ट्स में हमारे जूने प्रोजेक्ट्स के जो हैं उनके रिश्तेदार या उनके सिफारिश से नए प्रोजेक्ट बिकते हैं। तो आप 30 साल पहले देखेंगे तो 10% भी नहीं था, अभी 22% है और आंकड़े हमारे बहुत बड़े बन गए। पहले हम 100 फ्लैट बेचते थे तो मुझे लगता था तो मैं तो शाहूकार बन गया। शाहूकार मीन बहुत बड़ा शाहूकार बना। अभी हम एक प्रोजेक्ट शुरुआत की पुणे में, 1000 फ्लैट 3 दिन के अंदर बिक गए। सो बोल नहीं सकते, लेकिन एक ही बात है कि लोग ट्रस्ट एंड फेथ जो है, जो भी ब्रांड हो, टाटा का ब्रांड हो या कोई भी ब्रांड हो, गोदरेज का ब्रांड हो, कोई भी ब्रांड हो, तो विश्व में यहाँ नहीं सब जगह में उनको इजी हो जाता है कि फ्यूचर में जो धंधा करना है वो अच्छा होगा। पत्रकारांचे काय प्रेस रिपोर्टर्स प्लीज, यू हॅव एनी क्वेश्चन्स प्लीज आस्क। मागे पुढे बसलाय काही प्रोसेस इंटरव्ह्यूज असेल, तुमचे प्रश्न विचारा। रिस्पेक्टेड प्रेस मीडिया, आप लोगों को बताने में आनंद भी होता है कि आज हमारे साथ हमारे संस्था के वाइस चेयरमैन श्री राजेंद्र बांदेलकर सर, जिनको हम लायन ऑफ अवर इंडस्ट्रीज बोलते हैं, वो भी आया है। तो मैं चाहता हूँ राजेंद्र सर को भी आप
Rajan sir, you should address. And we have Smita madam also. She is the president for Women's Wing, जिसको हम माही बोलते हैं. So she is our national president. तो आपको प्रश्न अगर सर बोलतो ते बस झालं अर्धा तास मैडम उनकी वजह से मैं आपसे पूछता हूँ फीमेल बिल्डर्स का कितना पार्टिसिपेशन है रियल एस्टेट में और ये रियल एस्टेट में पार्टिसिपेशन हम कैसे बढ़ाएंगे ताकि हम रियल एस्टेट में 50% की बात करते हैं तो ये कैसे बढ़ेगा उसके लिए नरेको माहीविंग क्या प्रयास कर रही है? तेरी बीवी तेरे साथ पार्टनर है क्या? शुरुआत घर से करना. Actually, sadly only 10% women are there. जो अपना हम एम्प्लॉयर है, सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है इंडिया में, लेकिन छोड़ो हमारे लिए सब लेडीज हो गए. अभी ये भी जाएंगे तो पता नहीं कहाँ जाएंगे आप लोग. अपने घर पे रहना पड़ेगा. नो दिस इज नॉट एट ऑल राइट थिंग. हमारा जो इंक्लूसिविटी है वो आना चाहिए. डाइवर्सिटी हमने एनी हाउ कर लिया है. जैसे मेल डोमिनेटिंग सेक्टर माना जाता है रियल एस्टेट को, लेकिन वुमेन को लेके यहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उनको स्किलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ मिले, उनको जो अपनी काबिलियत है वो दिखाने की अपॉर्चुनिटी मिले. इसलिए नरेडको माही की तरफ से बहुत सारे हम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लेते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम्स लेते हैं, ताकि उनको हम अपलिफ्ट कर सके. एक जगह से उनके जो अचीवमेंट्स है, जहाँ पे उनको पहुँचना है, वहाँ जाने के लिए हम उनको पूरा सपोर्ट देते हैं, ट्रेनिंग्स के थ्रू, स्केलिंग्स के थ्रू, इंटरनेशनल स्टडी टूर्स के थ्रू, कि जहाँ से हमें समझे कि हम क्या रियल इस्टेट में डिफरेंस है, क्या महिलाएं बाहर देश में भी कर रही है और यहाँ पे हम कैसे कर सकते हैं. तो नरेडको माही के थ्रू हम ऐसे टूर्स के दौरान भी उन लोगों को ये सारी चीज़ें हम दिखाते हैं और सिखाते हैं. और इंडिया में अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे वुमेन आर कमिंग इनटू द रियल इस्टेट सेक्टर, बट स्टिल द लीडरशिप रोल्स आर विद द मेल. सो मैं चाहती हूँ कि वो इंक्लूसिविटी आए, और उसी के लिए सिर्फ स्किल बेस, अगर आप स्किल्ड हो, अगर आपके पास नॉलेज है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए रिक्रूटमेंट होना चाहिए. मेल या फीमेल ये चीज़ दिमाग में नहीं रखनी चाहिए. जस्ट बिकॉज शी इज़ अ फीमेल, हम जो अभी भी हमने देखा है कि 30 to 40% सैलरी गैप्स है जो कि नहीं होने चाहिए. तो हम उनको उस काबिल बनाना चाहते हैं, सारी ही महिलाओं को, कि उनके नॉलेज के बलबूते पर, उनके स्किल के बलबूते पर वो नई ऊंचाइयां छुए और ज़रूर रियल इस्टेट को भी लीड करे. तो यही नरेडको माही का हमारा मिशन है और हम ज़रूर इसमें कामयाब हो रहे हैं. धीरे धीरे उस तरफ हम जा रहे हैं. जी जी हमने वो प्रपोज़ल दिया है. अभी रेवेन्यू मिनिस्टर जी को हम मिले हैं, तो उस वक्त भी मैंने बताया था कि हम उस वक्त काम कर रहे हैं उस चीज़ पे. तो स्टैम्प ड्यूटी रिडक्शन जो है, जो प्लैटिनियम रेटेड प्रोजेक्ट्स है, उसमें अगर कोई अपना घर खरीदता है या ऑफिस खरीदता है तो उनको 1% स्टैम्प ड्यूटी का रिडक्शन मिलना चाहिए. ऐसा नरेडको माही की तरफ से प्रस्ताव रखा गया है और उस पर चर्चा चल रही है, और किस तरीके से ये चीज़ें अचीव हो सकती है, इसमें हम काम कर रहे हैं. चेयरमैन जी, एक छोटा सा सवाल है मेरा. रियल इस्टेट बहुत बढ़ रहा है, अच्छी बात है, हर शहर में बढ़ रहा है, पूरे देश में बढ़ रहा है, और इसी तेज़ी से जंगल काटे जा रहे हैं, जिसका परिणाम हम लोग कहीं बादल फट रहे, कहीं लैंडस्लाइड हो रहा है, कहीं भूस्खलन हो रहा है. तो आप लोग जंगलों को काट, आप लोग बताओ, व्यक्तिगत नहीं बोल रहा हूँ, तो जंगल कटते जा रहे हैं और शहर जो है वो जंगलों की तरफ बढ़ता जा रहा है, और ऐसे में प्रकृति जो है अपना संतुलन खो रही है बिकॉज ऑफ हम लोग के कारण. तो ऐसे में ठीक है, बिजनेस अपनी जगह है, रियल एस्टेट जो भी बिजनेस अपनी जगह है, ऐसे में क्या हमारा फर्ज नहीं बनता है कि हम लोग उस तरफ भी ध्यान दें, क्योंकि अगर कायनात रहेगी, प्रकृति रहेगी तो हम रहेंगे, और तभी हमारे लोग घर खरीदने आएंगे. अभी कायनात ही नहीं रहेगी तो कैसा होगा सर? थोड़ा कन्फ्यूजन दूर कर दीजिए.
नहीं, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है और दो मत नहीं है। हम हर एक को सस्टेनेबिलिटी को ध्यान देना ही है और दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है, नहीं तो हमारे देश ने पूरा विश्व का नुकसान हो जाने वाला है। तो हमने फोकस किया है, 3 पॉइंट्स चल रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, एनर्जी के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया है, तो पूरे जो बायोफ्यूल्स हैं वो सब चेंज करके इलेक्ट्रिकल होगा। सेकेंड, जो एनर्जी के ऊपर सस्टेनेबिलिटी, हम ग्रीन बिल्डिंग्स अभी सब बना रहे हैं, तो जितने भी ग्रीन बिल्डिंग्स हैं वो आज के तारीख में फ़र्क किया हुआ है कि उसमें सस्टेनेबिलिटी का जितने भी आंकड़े हैं वो यूज़ करना और कार्बन एमिशन है वो कम हो गए हैं। मैं उसके भी आंकड़े आपको सेपरेटली दे सकता हूँ। तीसरी बात ये रहा है कि हम पहले समझते थे, और ये जो मैं कहने को जा रहा हूँ वो बहुत महत्व की बात है। हमने 15 साल पहले 16 साल पहले 2 प्लैटिनम रेटेड ग्रीन कमर्शियल बिल्डिंग्स पवाई में बनाई। एक है बीजी हाउस और एक क्रिसल हाउस, और उनका आंकड़े में कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में 12% कॉस्ट ज़्यादा था। कितना? 12%। ये 12% एडिशनल कॉस्ट हमने 5 साल के अंदर उसका पूरा रिकवर कर दिया और हर साल हम मुनाफे में हैं। तो लोग क्या बोलते हैं कि सस्टेनेबिलिटी महंगी है, बट एक्चुअली वो कॉस्ट सेविंग बनती है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं सस्टेनेबिलिटी, तो उसमें क्या है। हम जब एक पवई खरीदा, वो जगह 250 एकड़ है, उसमें 20 झाड़ थे और झाड़ खेलने लायक भी झाड़ नहीं थे, और आज के तारीख में वहाँ 4 लाख झाड़ हैं और 250 एकड़ में 25% एरिया गार्डन बने हुए हैं। आप वेलकम आइए और देखिए कैसे सस्टेनेबिलिटी हम कर सकते हैं। चौथी बात है, हमारा कमिटमेंट है देश में कि जितना भी अफॉरेस्टेशन जगह हम डिन्यूडेट कर रहे हैं हाईवेज के लिए, रोड्स के लिए, बिल्डिंग्स के लिए, उतना ही इक्विवेलेंट हम झाड़ रीप्लांट करके दूसरे एरियाज़ में अफॉरेस्टेशन करेंगे। ये प्राइम मिनिस्टर का कमिटमेंट है और देश और हमारे स्टेट भी काफ़ी फॉलो कर रहे हैं। इसलिए अफॉरेस्टेशन हमारी कमिटमेंट, देवेंद्र फडणवीस साहब के कमिटमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के है कि उतना तो नहीं, उसको बढ़ाते जाएं। तो आप देखेंगे कि ओवरऑल एज फार एज महाराष्ट्र इज कंसर्न वो कॉम्पेंसेटरी करें। लास्ट पॉइंट एक ही है कि हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो घर कैसे देंगे। दूसरे विश्व में देश में डेवलपमेंट हो गया है, हर एक को घर मिल रहा है, हम अभी गरीब है। हम जब तक डेवलपमेंट नहीं करेंगे, लेकिन उसको कॉम्पेंसेट नहीं, हमको डेवलपमेंट तो करना ही है, क्योंकि आपको घर भी देना है, डेवलपमेंट भी करना चाहिए, इनकम भी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हम ध्यान दे रहे हैं। रियल इस्टेट भी दे रही है, इंफ्रा भी दे रही है, मैन्युफैक्चरिंग भी दे रही है, हर एक क्षेत्र में चल रहा है। लेकिन हम नहीं बोल सकते कि हम इसको ज़ीरो करेंगे, वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि डेवलपमेंट जब होगा कुछ ना कुछ कार्बन एमिशन होता ही है, लेकिन उसको हम कॉम्पनसेट कैसे करें वो हो रहा है। जैसे एनर्जी की बात है, हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा सोलर एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी से हो जाए, तो वो जो गैस एमिशंस हो जाएंगे वो बंद हो जाएंगे। तो ये ज़ीरो कमिटमेंट प्राइम मिनिस्टर ने दिया हुआ है और हम फॉलो करके करेंगे। Sir, Last question, we have to start the event. That slum development के बारे में आप चाहेंगे कि सरकार कोई नियम बनाए, क्योंकि होता ऐसा है कि कोई बिल्डर जब आगे बढ़ता है स्लम डेवलपमेंट की, यहाँ तो नागपुर में इतना प्रॉब्लम नहीं है, मुंबई में तो हम जानते हैं भारती वगैरह का चल रहा है, लोग काफ़ी उसका विरोध करते हैं, खास करके लोकल पॉलिटिशियंस काफ़ी विरोध करते हैं कि उनका वोट बैंक यूज होता है। पर गवर्नमेंट अगर कोई नियम बनाए, निश्चित नियम बनाए कि इतना स्लम्स को मिलना ही चाहिए कंपलसरी, और शुड बी कंपलसरी स्लम रीडेवलपमेंट, आप चाहेंगे कि सरकार को ऐसा नियम बनाए? हाँ, वो बन गया है, देवेंद्र फडणवीस साहब ने बना दिया है और उनके टारगेट है कि 7 साल के अंदर मुंबई के सब झोपड़े पूरे हो जाए। वो मुझे नहीं पता, आप उनको पूछे। हाँ, मैं बोलूँगा, आपके लिए बोलूँगा। Now, I think with this, झालं I think we need to start the event. So last one, we have assembled for Pride of Real Estate Award.
So the press person can come with their mobile and the cameras. We will give the press brief for Pride of Real Estate Award. May I ask Mr. Sahib Tiwari, the chairman? प्रेस वाले आ गया, प्रेस वाले